میرے معزز ناظرین اور سامعین، بحیثیت ایک اقلیتی رکن کے ہرچند کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر اقلیت کا جو داغ لگا ہوا ہے وہ ہے تو غلط، نامناسب۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا خون اس دھرتی کی مٹی میں شامل ہے، ہمارا ووٹ، کاسٹنگ ووٹ پاکستان کے حق کے لیے دیا گیا۔ یہ ایک الگ تاریخ ہے، میں کسی وقت بیان کروں گا۔ دیوان بہادر سنگھ اور دیگر ہمارے اکابرین جنہوں نے یہ فریضہ انجام دیا اور قائد اعظم کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوئے، آج ہم اس لیے بھی پاکستان میں بیٹھے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ پنجاب جو ہے وہ ہمارا حصہ اس وقت بنا جب ہم نے اپنا کاسٹنگ ووٹ استعمال کیا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ابتدائی سے ہمارے ساتھ جو ظالمانہ اور متعصبانہ رویہ استعمال کیا گیا وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کیسے بنا، یہ ایک الگ کہانی صحیح، لیکن ہر بار قائد اعظم کی تقاریر کا 11 اگست کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنی مسجدوں میں، مندروں میں یا جہاں کہیں بھی ان کی بات لگائیں جانے کے لیے آزاد ہے۔ آج اس مسئلے کو لے کر جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ سینٹ میں جناب جاوید عباسی صاحب نے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ایک بل پیش کیا جسے کثرت رائے سے مسترد کر دیا گیا، جس میں ایک ہندو سینیٹر نے واک آؤٹ کیا احتجاجاً، لیکن ہمارے سینیٹر جناب انور لال دین کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کس گمان میں تھے، یا کچھ پی کر بیٹھے تھے، یا سینٹ کے اجلاس میں موجود نہیں تھے؟ وجوہات کچھ بھی ہوں، ان کی زبان سے کوئی لفظ اس کے لیے نہیں نکلا۔ اس سے پہلے ہمارے جو وزیر ہیں جناب اعجاز عالم اگسٹین صاحب، وہ پاکستان کو جنتوں کی اقلیت قرار دے چکے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا سوچ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اقلیتی ممبر ہیں، چونکہ وہ وزیر ہیں تو ان کے لیے یہ پاکستان جنت ہے۔ آج بل کا نامنظور ہونا وہ بھی کثرت رائے سے، جس میں سب سے پیش سرخیل جو ثابت ہوئے مولانا عبدالغفور حیدری، وہ اس بات پہ انہوں نے زور دیا، اور آخر کار وہ لوگ جو جمہوری قوتوں کے دعوے دار ہیں، جو کہ جمہوریت کے دعوے دار ہیں، جو کہ جمہوری قوانین کے علم بردار ہیں، ان کی خاموشی کیا معنی داری تھی وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کے اوپر کیا دباؤ تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ جب بھی اقلیتوں کے حقوق کی بات آئے گی، وہاں پر بڑے زور شور سے جمہوریت کا دعوے دار، جمہوریت کا علم بردار بھی پکا مسلمان بن جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں بنے گا، مولوی اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیں گے۔ یہ حال ہے ہماری اس سرزمین کا، یہ حال ہے ہمارے وطن کے اکابرین کا، یہ حال ہے ارباب اقتدار کا، اور حکومت کی جانب سے مکمل خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ بل کو مسترد کرنا ہی بہتر تھا تاکہ اقلیتوں کو تحفظ نہ مل سکے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ ہر ناانصافی جو اقلیتوں کے خلاف ہوتی ہے وہ جائز، زنا بالجبر ہوتا ہے
जबरी मजहब तब्दीली मजहब होता है, जायज़। अकलियतों के घर जला दिए जाते हैं, जायज़। अकलियतों को मावरे अदालत कत्ल कर दिया जाता है, जायज़। अकलियतों के लिए नातकाए रोजगार बंद, जायज़। अकलियतों के लिए हमेशा की तरह अब भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो जायज़। ये पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, ये ज़िम्मी हैं। अगर ज़िम्मी होते मेरे मोहतरमीन तो हम पाकिस्तान के हक में वोट न डालते। हमारा खमीर इस सरजमीन से उठा है, लेकिन हमारा मुतासिब, इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद मौलवी या नाफिज करने वाला वो इस बात से कतई बहरावर नहीं है। उससे इस बात से गर्ज है इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा दीन है, मान लिया, हमें कोई एतराज़ नहीं है। सबसे बड़ा दीन होने के लिए उसको साबित करने के लिए अपने छोटों का एहतराम भी तो करना ज़रूरी है, उनकी हिफाजत करना भी तो ज़रूरी है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना भी तो ज़रूरी है, उनके कवानीन का एहतराम करना भी तो ज़रूरी है, उनको कौमी धारे में शामिल करना भी तो ज़रूरी है। ये बड़ों का काम होता है कि छोटों को लेकर चले। आप बड़े, मान लिया, हमने कब इनकार किया है? हम इनकार नहीं करते, लेकिन छोटों को लेकर साथ कौन चलेगा? उनके हकूक़ कौन पूरे करेगा? उन पर शफकत का हाथ कौन रखेगा? अब हमारे साथ जो कुछ भी होता है, किसी पर भी तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाकर उसको मारा पीटा जा सकता है, जुलूस निकाले जा सकती हैं, जलसे निकाले जा सकते हैं, क्योंकि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मौजूद नहीं है, सो जायज़। अभी कई बार ऐसा हो चुका है, और अभी रिसेंटली तबीता गिल नामी खातून के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे कहानी महज ज़ाती रंजिश थी। जो कुछ उसके बारे में बताया गया, जो एफआईआर में बयान किया गया, वो अपनी जगह, वो तफ्तीशी अफसर जो है वो उसका काम है वो कुछ जाने और पहचाने, लेकिन जो मुबैना तौर पर इतलात हमारे तक पहुंची है उसने कोई गुस्ताखी की ही नहीं, और ना ही कोई मसीह इस तरह की जुर्रत करता है कि वो इस तरह के, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है कि एहतराम सबका लाजिम है। शायद, लेकिन हमारे बड़े अकाबरीन, इस्लाम के बड़े दावेदार इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं कि एहतराम छोटों का फ़र्ज नहीं है, दस्ते शफ़क़त रखना बड़ों का छोटों पर भी काम होता है। जो कुछ अक़लियतों के साथ इससे पहले हो चुका और होता रहेगा, जिस हिसाब से जिस जगह पर पाकिस्तान चल रहा है और चलता रहा है, हमें नहीं यकीन कि अब इन उकाबों के दरमियान, इन शिकलों के दरमियान चिड़ियाँ अपना घोंसला महफूज रख पाएंगी कि नहीं। खुदा के लिए हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी समझिए। ना तो हम पाकिस्तान से बाहर थे। अक्सर कहा जाता है जी ये बाहर भाग जाते हैं, ज़रा तादाद गिन के देखिए हुज़ूर मोहतरम, बाहर भागने वालों में अक्सरियत ज़्यादा है या अक़लियत। अगर आप हमें तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं चाहते, एक साहब से मेरी गुफ्तगू, उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान छोड़ जाए, तो भाई हुकूमत पाकिस्तान को हमारे लिए तैयार कर लो ना, कि हम अक़लियतों को नहीं रख सकते, हम अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, हम 47 की तारीख दोहराना चाहते हैं। हिंदुओं ने हमें वहाँ से मार कर भगाया, हमने हिंदुओं को यहाँ से मार कर भगाया, उन्होंने उधर से जो काटा पीटी की, खून खराबा किया, तशद्दुद किया, हमने यहाँ से उनके लिए वही रवैया अख्तियार किया, और अब भी हम यही करना चाहते हैं। हिंदुओं का इंतकाम, सिखों का इंतकाम हम अब मसीह अक़लियत से लेंगे।
वो गिलास में पानी पी ले तो गिलास प्लीत, उस पर वो एहतजाज करे तो तौहीन रसालत। तब्दीली मजहब का मामला आ जाए, अगर आपने उसको कबूल नहीं किया, तौहीन रसालत या कताल। इस्लाम मेरी निगाह में जिसका दावा आप करती हैं, लेकिन मैं उससे समझता हूं कि अमन पसंद मजहब है, लेकिन इस अमन पसंदी में तशद्दुद का उनसर किसने शामिल किया? ये कताल करने वाले कौन हैं? ये ज्यादती करने वाले कौन हैं? जबरदस्ती जबरी तब्दीली मजहब के दावेदार कौन हैं? इनका रास्ता क्यों नहीं रोका जाता? अकलियतें गैर महफूज क्यों हैं? और आज सीनेट में ये बिल पेश हुआ और उसको मुस्तरद कर देने का सीधा सीधा मतलब ये था कि अकलियतों पर से हुकूमत का दस्ते शफ़क़त हट जाएगा, या हटा हुआ था या रहेगा। अब अकलियतें गैर महफूज हैं, जिसका जी चाहेगा, जब जी चाहेगा, जिस वक्त चाहेगा वो अकलियतों को दबा देगा, उनकी बेटियां उठा कर ले जाएगा, उनको जबरी मजहब तब्दीली के अमल से गुजारेगा, उनका जना करेगा, उनका कत्ल करेगा, उन पर तौहीन रसालत लगाएगा। ये सब जायज़ हो जाएगा। अकलियतें गैर महफूज हो चुकी हैं। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है, जनाब इमरान खान साहब, जनाब सदर मोहतरम साहब, चारों सूबों के वज़ीर आला साहब, गिलगित बल्तिस्तान के करता धर्ताओं, आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म और दीगर काबीना, होश का नाखून लीजिए। ये क्या किया जा रहा है? आपकी छत्र छाँव में अकलियतों को गैर महफूज करने का अमल पहले भी जारी था, और अब तो मोरे तस्दीक सबत हो गई कि हम अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। इस पर कुछ गौर फरमाइए जनाब अरबाब इक़्तिदार। हुकूमत वक्त इसका नोटिस ले और हमारे अश्कशोई के लिए कोई तो हुक्म जारी करे। और जनाब अनवर लाल दीन साहब और जनाब अगस्टिन आलिम साहब, खुदा के लिए आपकी ज़बान को घुन लग गया है, कहाँ चले गए आप? आपकी अक्लों को क्या हो गया? कौन सा पर्दा पड़ गया आपकी अकल पर? आपकी जुबान पर किसके लगाए हुए कुफ्र खुल नहीं पा रहे? खुलिए। अनवर दीन, खैर उनका तो क्या कहूँ, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। इजाज़ अगस्टिन आलिम, उनके लिए ये पाकिस्तान जन्नत है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो जहन्नुम बना दिया जाना चाह रहा है कि ये इनके लिए जहन्नुम बन जाए। आपको तो मरात हासिल है, आपके लिए तो जन्नत है। रह गए अनवर लाल दीन साहब, तो वो गूंगे सैनिटर हैं, बहरे हैं, वो तो नाबीना हैं बेचारे। उनको किसी और काम से फुर्सत मिलेगी तो इस तरफ आएंगे ना। खुदा के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। आप हमारा हिस्सा हैं, आप हमारे नुमाइंदे बनिए। अपनी ज़बानों को खोलिए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। हमारा हाथ भी आपके साथ बुलंद हो जाएगा। हम भी अपनी आवाज़ आपकी आवाज़ के साथ मिला लेंगे। आगे तो बढ़ें, लेकिन कैसे, ये सवाल है। अपनी जगह इस पर गौर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।